Recording in All progress. right. All right. Now chapter number 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म में हम लोग बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स की बात करेंगे, अर्थ के मैग्नेट की बात करेंगे, और मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना। क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, है ना। इन सम टर्म्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। दीज आर द टॉपिक्स इन दिस। एंड डिप एंगल, है ना, अर्थ की मैग्नेट में डिप एंगल आता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आता है। तो दीज आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर एंड सम ऑफ देम आर कॉमन। डायपोल के जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डायपोल के 5 टॉपिक्स वी डिड। डू यू रिमेम्बर व्हाट वर दैट? क्या थे वो सब? डायपोल मोमेंट था एक तो, है ना। दूसरा field on the axial line of dipole, field on the equatorial line of dipole, then torque, then potential energy. So यहाँ पे derivations are not there in our course. If at all derivations are asked, so you can just change the symbol, and whatever we have done it in the electric field के chapter में, I mean electricity के electrostatics के chapter में किया था, तो same you can repeat. So they don't ask the derivation from this chapter for these topics, only numericals direct. ठीक है, तो we will also write the formula and do the numerical. Derivation we can skip, but उससे पहले we are going to cover some more topics. पहले बार मैग्नेट का, okay, बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट, just we will repeat again all the points. देखो, this is the bar magnet you are seeing. बार मैग्नेट है ये, फ्लैट, I mean this rod जैसा रहता है। तो इसमें there will be south pole, one pole is called south pole, other is called north pole, ठीक है। South pole is equivalent to negative charge, north pole is equivalent to positive charge. तो south pole का जो now pole strength we call it, यहाँ पे हम negative charge नहीं बोलते हैं, we call it pole strength or magnetic charge we call it. So let us see one by one. 2L is the length, dipole length हो जाएगी, इसकी जो length होगी that is called dipole length, but it is slightly less than the actual length. जो poles होते हैं ना, slightly inside होते हैं. I think nobody knows कि accurate position क्या होती है उनकी, but roughly 84% of the length, ये total length अगर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो dipole जो है dipole length will be 84 to 86 centimeter, 84% to 86% of total length. So that point just we are not going into deep. Generally numericals में जितनी length दी होती है उसी को dipole ले लेते हैं, ठीक है। तो but actually they are slightly inside. Clear? तो उन जो poles हैं उनके बीच का distance is actual dipole length, ठीक है। 2L is the dipole length between two poles, south pole and north pole, which are slightly inside the magnet. All right, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. QM, यहाँ पे हमने ये डॉट लगाया, यहाँ पे QM लिखा है. QM, magnetic charge, pole strength or magnetic charge. NCERT book write the magnetic charge. We will also write that magnetic charge. Okay. But they are generally known as the pole strength, magnetic charge. तो साउथ पोल का माइनस QM and north pole का plus QM. Now dipole moment is similar way. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था सिंबल डायपोल मोमेंट का? P, Q into 2A था वहां पर सिंबल, यहाँ पर Q की जगह QM, इसका सिंबल M भी रहेगा, स्मॉल m आल्सो. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दे गिव यू स्मॉल m, बट स्मॉल m हमने किसके लिए लिया हुआ है? डायपोल मोमेंट के लिए स्मॉल m सिंबल दिया हुआ है, but many places they use small m for
pole strength and capital M for dipole moment. तो we are following the NCERT book symbols, उसी को हम लिखेंगे 2L and EQM. Small m मैं कट कर देता हूँ because that we have taken for the dipole moment, magnetic dipole moment का symbol लिया. तो magnetic dipole moment M will be magnitude of pole strength QM into dipole length. है ना? Now you tell me what will be the unit. इसकी यूनिट बताइए. चलो डायरेक्शन नीचे लिखते हैं. पहले यूनिट बताओ. डायपोल मोमेंट की यूनिट बताइए कुछ. कूलम पर मीटर. कूलम तो इलेक्ट्रिक चार्ज का रहता है, ये तो मैग्नेटिक चार्ज है. मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट कूलम नहीं होगा, पर मीटर भी नहीं होगा. मीटर ऊपर आना चाहिए. तो मैग्नेटिक चार्ज का सॉरी टेस्ला मीटर. कैसे टेस्ला मीटर? टेस्ला कहाँ से? टेस्ला कैसे बोला? टेस्ला किसका है यहाँ पर? डायपोल मोमेंट में मैग्नेटिक चार्ज नहीं. ओके, मैग्नेटिक चार्ज इटसेल्फ इज उसका यूनिट ही नहीं पता. यूनिट उसका पूछा जाता है. मैग्नेटिक चार्ज डजंट हैव इट्स यूनिट. इट्स इंडिपेंडेंट यूनिट, डिराइव्ड यूनिट है इसकी. मैग्नेटिक चार्ज की डिराइव्ड यूनिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा नीचे वही है कि मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट बताओ, है ना. बट मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट नहीं पता है. देन आल्सो यू कैन टेल द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का यूनिट फिर भी बता सकते हैं इवन इफ यू डोंट नो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज. दैट इज पोल स्ट्रेंथ आल्सो वी कॉल इट. इसका यूनिट नहीं पता है, देन आल्सो यू कैन टेल. हु विल टेल? जल्दी बताओ. डायपोल मोमेंट इज आल्सो इज इक्वल टू INA. ये भी तो होता है डायपोल मोमेंट. इसका तो हमने सीखा है ना, प्रीवियस चैप्टर में सीखा कि नहीं सीखा? क्या था उसका? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर ठीक है. सिंस M इज आल्सो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, यूनिट लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर. सिंस M इज इक्वल टू INA आल्सो. तो प्रीवियस चैप्टर से इसका यूनिट आएगा. अभी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट यू कैन फाइंड आउट. आई हैव रिटन द क्वेश्चन फर्दर. ठीक है. तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट भी एंड डायमेंशंस भी. समटाइम दे आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज इट्स यूनिट. तो यूनिट अभी निकाल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, इसका क्या पॉइंट है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. Vector quantity है. Direction will be from south pole to north pole because south pole is equal to the negative charge. Do you remember what was the direction of dipole moment in case of electric dipole? Direction क्या थी उसकी? नेगेटिव टू पॉजिटिव. Yes, to negative positive. charge to positive charge. यहाँ पर south pole to north pole. South pole is equivalent to negative charge. So south to S to N, south pole to north pole. So this point is you have to remember. Okay. South pole to north pole. Now let's see what is the next question. Next question मेरा ये है कि अगर इसको बेंड कर दो, अभी इसको ऐसे बेंड कर दो सेमी सर्कुलर में, then what will be the dipole moment? Dipole moment में dipole length जो होती है दोनों चार्ज के, दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस होती है ना. तो यहाँ पे फुल लेंथ ले रहे हैं. वी विल टेक द फुल लेंथ. विल नॉट हैव द कंफ्यूजन कि द पोल स्ट्रेंथ, पोल मैग्नेटिक चार्ज थोड़े से अंदर होते हैं. दैट पॉइंट वी आर लिविंग, वी आर जस्ट टेकिंग दे आर एट द एंड्स. ठीक है. इसको सेमी सर्कल में बेंड कर देंगे तो डायपोल लेंथ विल चेंज. No, sir. No, sir. Dipole length will change because dipole length is the distance between two poles. I mean two poles. अगर बेंड करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा ना. सपोज तुमने बेंड कर दिया ऐसा, तो
डायपोल लेंथ विल बी दिस मच। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक व्हाट इज कॉल्ड पोल है माइनस क्यू एम, यहाँ प्लस क्यू एम। उनके बीच के लेंगे ना, बेंड हो गई तो हम ऐसे नहीं लेंगे, उनके बीच का डायपोल लेंथ इज द, यहाँ पे लिख दूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। पोल स्ट्रेंथ की जो वो है डेफिनेशन, shortest distance between two magnetic charges, between magnetic charges। तो सेमी सर्कुलर में अगर बेंड कर दिया तो चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। ये होमवर्क में सेमी सर्कल का तो इजी है, बट एंगल थीटा पे अगर बेंड किया उसको, आई मीन उसको अगर हमने, इफ वी आर बेंडिंग इट एट व्हाट इज कॉल्ड आर्क के शेप में, एंगल थीटा एट सेंटर, देन थोड़ी सी डीप जाना पड़ेगा उसमें, बट सेमी सर्कल इज इजी। डायमीटर निकालना पड़ेगा सेमी सर्कल का, लेंथ इज एल, तो दैट यू कैन डू इट इजिली। बट आर्क में बेंड किया, नॉन सेमी, अगर इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द आर्क, देन इट इज more geometry is involved. This can be done, can be asked in board examination. यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया बार मैग्नेट के बारे में, एंड डायपोल मोमेंट आल्सो, एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स यूनिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम सो फार। नो सर, नो सर। तो देखिए अभी इसके बाद जो है ये एंगल वाला कल बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी देखो, सपोज टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स है, वन इज हियर, अनदर इज हियर, each of the dipole moment 2 SI units are kept as shown. Find the net dipole moment of the system. Find net dipole बोलो क्या होगा इसका आंसर, क्विक आंसर देंगे। 0 0। कैसे जीरो, कैसे जीरो? जीरो तो तब होगा जब इसको ऐसे रख दो। ओके, जीरो कब होगा? ओके चलो, यू एक्सप्लेन मी जीरो, कैसे जीरो होगा? जब हम एक बार मैग्नेट को, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, दूसरी बार मैग्नेट के ऊपर रख दें विद अपोजिट पोलरिटी, नॉर्थ साउथ, इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तब जीरो होगा। 90 डिग्री पे है ये, 90 डिग्री पे जीरो कैसे होगा बोलो? बोलो, आर द अपोजिट, आर द डायपोल मोमेंट अपोजिट टू ईच अदर? कितना होगा बोलो? ईच का 2 है। इजी, इट इज इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जस्ट कीप द things revising in the of the previous chapters. Anybody? 2 root 2, 2 root 2। Yes, how? How 2 root 2? वेक्टर क्वांटिटी है, एक का डायपोल मोमेंट इधर आएगा, यस, एक इधर आएगा ना, इसका डायपोल मोमेंट इधर आएगा m1 और इसका m2, दोनों का 2 ही है ना, इसका भी 2 ऐसा यूनिट, इसका भी 2 ऐसा यूनिट, तो दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पर। कौन सा फार्मूला? m net will be अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 90 डिग्री पे, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज 2 रूट 2। यूनिट लिख सकते हैं ऐसा यूनिट, which is एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना। ऑलराइट, तो डायरेक्शन याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटीज में they will be added according to direction, according to the vector formula, under root of a square plus b square plus ये होता है r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab
cos थीटा, दो वेक्टर क्वांटिटी, A is the one vector quantity, B is the other, और दोनों इस फार्मूले में दोनों सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी होती, जो A होगी वही B होगी, अनलाइक क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड। अगर A डायपोल मोमेंट है तो B भी डायपोल मोमेंट ही होगा, उसमें कुछ और क्वांटिटी नहीं ऐड कर सकते वेक्टर से। वेक्टर एडिशन इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज फॉर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? नाउ इसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा कुछ, ओके जस्ट आई रिमूव दैट क्वेश्चन, नहीं इट इज हियर। अगर तुम्हें और क्वेश्चन ऐसे देखो, ये ऐसा क्वेश्चन भी somewhere it was asked, can you see? देखो इसमें तुम्हें वेक्टर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। पहले तुम्हें ये देखना है कैसे थ्री डायपोल्स आर देयर, थ्री मैग्नेट्स आर देयर ना, एक ट्रायंगल में है, एक इस तरफ है, एक ऐसे रखा, देखो एक ऐसे एक ऐसे, तो पहले तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, साउथ नॉर्थ। इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है ये वाला, और इसका इधर जा रहा है ये वाला, इधर हो गया, और इसका इधर जा रहा है डायपोल मोमेंट। तो तीन वेक्टर बना लिए हमने ऐसे, आइडेंटिकल है, इनका वेक्टर एडिशन आना चाहिए, है ना? ये 120 पे होंगे ये और ये, तो इनका 60 डिग्री पे इक्वल आता है, एम के बराबर ही आएगा। ये फार्मूले से देखो, ये 120 होता है ना, तो ये आइडेंटिकल है और ये 120 है, cos 120 इज -1/2, तो फिर r जो है a के बराबर, a इज इक्वल टू b है ना? तो तीनों का m है, तो इसका m आ जाएगा इधर इसी डायरेक्शन में, ये हट जाएंगे फिर, और एक m इधर ही था और दूसरा m भी इधर आ गया, तो 2m आंसर आ जाता है इसका। वेक्टर की प्रैक्टिस करो 120 डिग्री पर, रिजल्टेंट जो है if two vectors of equal magnitude, देखो जस्ट लेट मी रिपीट अगेन, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट भी उसका 10 आ जाएगा, ये r आएगा इधर कहीं पे फार्मूले से, रिजल्टेंट विल बी 10 न्यूटन और 60 डिग्री पे बीच में आएगा 60 डिग्री पे। तो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के जब दो वेक्टर होते हैं 120 पर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल आ जाता है और बाइसेक्टिंग पे आता है, तो इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा, और एक ऑलरेडी है ये वाला जो रेड जो हमने मार्क किया था ब्लू से, और इन दोनों का रेड से, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एम आ गए, तो इसलिए 2m आंसर होगा। तो इसके लिए तुम्हें वेक्टर्स पढ़ने, वेक्टर्स के देखने पड़ेंगे ये सब रिजल्ट, है ना? इस तरह से अगर इसमें सपोज वन ऑफ देम इज इन्वर्टेड, अभी देखो ये वाली जो है कौन सी थी, ये वाली, इसको इन्वर्ट कर दो, यहाँ पे साउथ पोल कर दो, यहाँ पे नॉर्थ कर दो, तो उसका इधर आ जाएगा, एक m इधर आएगा फाइनल इन दोनों का, और इसका m, तो नेट 0 हो जाएगा, m net will be 0 if you invert this one। तो it depends upon how they are kept। डायपोल जो उनके जो रॉड्स हैं, ये मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, मैग्नेट्स जो है इनको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं ना, बिकॉज ऑलवेज दे विल हैव द टू पोल्स। All the bar magnets will be called magnetic dipole because always they will have two poles, even if you break them apart in many pieces। अभी मैग्नेट में मोनोपोल नहीं मिला अभी तक, सिंगल पोल इज नॉट obtained, साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर दैट सिंगल पोल, बट अभी तक नहीं मिला। ऑलवेज इफ यू मेक द infinite, you make the 1000 pieces of that bar magnet, 10,000 pieces कर लो, all pieces will have two poles। क्लियर? तो ये क्या याद रखना है इसमें, डायरेक्शंस याद रखनी है कि वेक्टर क्वांटिटी है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, वेक्टर से ऐड करनी। इफ two magnets or three magnets are there, so you have to add them dipole moment according to the vector law of addition using this formula। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपका ये एक क्वेश्चन है होमवर्क में, एंड वन मोर पॉइंट देन विल वाइंड अप। इसका ये तो अभी डिस्कस हो गया, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। डायमेंशन भी लिखो, दो आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डायमेंशन भी लिखनी पड़ेंगी। बोर्ड में डायमेंशन दे डोंट आस्क, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायमेंशंस आर जनरली नॉट आस्क।
क्योंकि दे इट इज द पार्ट ऑफ द 11th कोर्स, इसीलिए 12th के बोर्ड में डायमेंशन नहीं आती. What is the SI unit of pole distance? Write its dimension formula also. Write its dimensional formula also. ठीक है. इजी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है. दिस इज सेकंड नंबर. नो प्रॉब्लम सो फार. Are you there? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Because yeah. okay, this iPhone का hotspot is that phone का hotspot is working, है ना? Otherwise, that other network is not working. Even if that is Jio Fiber, they are claiming the speed 100 Mbps. Maybe speed, it may not be depending upon the speed. But let us see. Okay. This point also you just do in your homework. Magnetic field lines की property लिखनी है. जो electric field lines की थी property almost same except one. Do you remember electric field lines की property क्या थी? They don't intersect, है ना? And if larger the number of field lines per unit area, the stronger will be the field. पढ़ा था हम लोगों ने? If the field lines are closer, electric field will be stronger. Similar to this. ये common है, ये common है. और ये क्या आंसर है देखो? Tangent gives tangent to the field lines at any given point represent the direction of magnetic field. यहाँ पे suppose आपको tangent draw करो, तो direction of field यहाँ पे draw करेंगे तो इधर होगी field की. So this is also common. 3 common. So what is different property is this one. First one is different property. देखो, they make the closed loop, continuous closed loop. Electric field lines क्या थी? Continuous थी. That's all. Outside of the charged body. Closed loop नहीं थी, अंदर नहीं. Inside they were not there. Continuation में नहीं था. But they are continuation. They start from the North Pole, go to the South Pole, and inside they continue to move towards the north. यहाँ से South Pole से North. Inside जो है South Pole to North Pole. This is interesting property है ना. Inside South to North है, outside North to South है. अर्थ के अंदर भी फील्ड जो है, अर्थ के अंदर भी इमेजिनरी मैग्नेट है. फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस. They make the closed loop. That is a different point here. Continuous closed loop. Can you see here? I have just marking continuous closed loop taken from your textbook. My textbook का ही है ये point. So that is the only difference with the electrostatics. Electrostatics are not closed loop. Do you remember that point? You can revise that. So this point is different. Remaining can be seen. Inside they are from South Pole to North Pole. Outside they start from North Pole and go to the South Pole and continuous throughout. Continuous है, कहीं पे ब्रेक नहीं है. ठीक है, ऐसे जो इधर जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इनफाइनाइट से घूम के आएगी. That's all from my side. Anything you want to ask, you can just